وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ایسا ہے کہ سورہ انفال ہم شروع کرنے والے ہیں، تو اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ اچھا تو یہ تھا کہ سب ساتھی آتے، لیکن آج ساتھیوں کچھ کام تھا تو انہوں نے یہ بات کی، تو میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ وہ ہماری اس بات کو ریکارڈنگ کو سن لیں گے، اور جو ابھی ہمارے ساتھ ہیں وہ مشتاق بھائی ہیں جی اور سر، نمرہ ہے، سلیم بھائی ہیں، نمرہ بیٹی ہیں، مشتاق مغل صاحب ہیں، اور اپنے پروفیسر صاحب ہیں۔ پروفیسر صاحب یہ بھی آئے۔ ہاں جی، دیکھتے ہیں۔ تو بیٹا آپ تیار ہیں؟ وہ نقشہ جو تھا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے؟ جی انکل جی، وہ میں نے لگا دوں ابھی تو نہیں، جب میں کہوں گا تو پھر لگانا ہے، میرا مطلب کہنے کا یہ ابھی نہیں، بعد میں لگانا۔ جی اوکے جی انکل جی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو سورہ انفال ہے اس کا نام انفال کیوں رکھا گیا ہے؟ تو بتائیں آپ کو، آپ تیار ہیں جی؟ جی سر۔ سورہ انفال کو انفال اس لیے کہتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے فرض چیز اور ایک ہوتی ہے نفل۔ کیوں جی، میرے ساتھ ذرا دیکھتے جی سر، جائیے گا۔ سن رہے ہیں سر۔ فرض جو ہے اس کو پورا کرنا، اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں، اس فرض کو پورا کرنا ہے۔ جی سر۔ نفل وہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے خوش ہو کے اگر آدمی کرتا ہے تو اس کو نفل کہتے ہیں، تطوع۔ ومن تطوع خیرا، جو خوشی سے نیکی کرے، فهو خیر له، اس کے لیے بہتر ہے۔ پڑھا تھا نا جب رمضان میں آیا تھا۔ جی سر۔ یہاں جو ہے وہ یہ بتایا کہ غزوہ، پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ سورہ پوری کی پوری تقریباً غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ کس سے متعلق ہے؟ غزوہ بدر۔ جی، تو غزوہ بدر جو تھا وہ 2 ہجری میں ہوا، تو 2 ہجری میں جب ہوا تو اس کے اندر غزوہ کے اندر 3 قسم کے لوگ تھے جنہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز کی۔ ایک تو وہ لوگ تھے کہ جب یہ مکہ والے آئے، قریش کفار جو تھے، ان کے ساتھ لڑے، تو لڑنے کے بعد کچھ لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، تو وہ حفاظت پر ہی مامور تھے۔ کچھ لوگ تھے کہ جب وہ غزوہ بدر ختم ہو گیا تو کافر بھاگ گئے، تو ان کے پیچھے چلے گئے جی کہ بھئی ہم ان کو بھگا کے آئیں، پتہ چلے کہ بھی یہ واپسی پہ آ کے دوبارہ حملہ نہ کریں۔ اور باقی کون سے لوگ رہ گئے؟ مال جمع کرنے والے کچھ پیچھے۔ ہاں، باقی وہ لوگ رہ گئے کہ جو غزوہ بدر کے میدان کے درمیان اندر جو مال غنیمت تھا وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے۔ تو یہ 3 قسم کے ساتھی تھے۔ تو جو روایت آ رہی تھی اس وقت یہ تھا کہ جب جنگ لڑی جائے تو جنگ کے درمیان، جنگ کے ختم ہونے پہ جو کسی سپاہی کے ہاتھ میں آ جاتا وہ اس کا ہوتا تھا۔ یہ روایتاً تھی مکہ کے اندر یا شبہ الجزیرہ، اس کے اندر جو جنگیں لڑی جاتی تھیں تو جو کسی کو مل گیا وہ اس کا ہو گیا۔ جی، تو آپ یہ تصور کریں کہ یہ جو چیز تھی، یہ ابھی تک کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان کہ جس کے اندر کوئی مال غنیمت آئے، تو یہ پہلی جنگ تھی جو حق اور باطل کے درمیان میں ہوئی۔ جی بیٹا یہ ہاں
हक और बादल के दरमियान में हुई। तो लिहाजा लोग जो थे उन्हें भी जंग जो इन्होंने की हुई थी उन्हें भी पता नहीं था कि हमने क्या करना है। वो अपनी पुराने तरीके कार पर ही कि जो किसी के पास माल आ गया वो उसी का है। अब बाकी दो ग्रोह जो थे उन्होंने कहा कि हम तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे, अगर हम ना होते, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत ना करते तो क्या आप जंग जीत सकते थे? जी नहीं। और जो पीछे गए हुए थे कुफार के तो उनको कहा, उन्होंने कहा जी तो हम तो उनको पीछे लगे हुए थे, अगर वो वापस आ जाते तो क्या आपको ये माले गनीमत मिलता? ना मिलता। जी नहीं। तो अब जब माल तकसीम हुआ तो अपना इस्लाम ने जंग का तरीक़ाकार जो था वो बदल दिया और ये गुज़वा बदर के अंदर जो माल आया ये रहती दुनिया तक के लिए कि जो जंग होगी किसी गैर मुस्लिम के साथ और उसमें से जो माले गनीमत आएगा उसको कैसे हमने तकसीम करना है, ये उसकी तरबियत के लिए है। जी एक तो ये ज़हन में है कि भाई वो जो 3 मुसलमानों के अंदर ग्रोह हो गए और वो बड़े लालची थे, हरीस थे, एक दूसरे के साथ लड़ने लग गए। एक तो तफसीर ये ज़हन में आता है, तो मैं ये कहूँगा कि ये तफसीर इस वजह से है कि हमें ये बताना था कि आप लोगों ने ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। जी अब बात मैं कर रहा था अनफाल की। अनफाल ये है कि ये जंग गुज़वा बदर जो लड़ा वो कितने लोग थे मुसलमान जिन्होंने ये गुज़वा लड़ा था? 313। 313 या कमोबेश, ठीक है। और वो कितने थे? वो 1000 के करीब थे या 1000। 900 थे। तो 313 और 1000 या 900 का जो तनासब बनता है और 1 और 3 का बनता है। जी सर। और उनके पास 2 ज़रें भी थीं और ऊंट भी थे और घोड़े भी थे, तलवारें भी थीं। और इन लोगों के पास 2 घोड़े थे, थोड़ी सी तलवारें थीं और ऊंट 70 के करीब ऊंट थे जिस पे ये मदीना से बदर के मैदान में तशरीफ लाए। तो ये जंग जो लड़ी तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआएं की, लोगों ने भी दुआएं की कि या अल्लाह अब तू ही है, जो कुछ सामने नजर आ रहा है इसमें हम तो नहीं जीत सकते। जी क्यों जी? जी जी कि जब सामने इतने लोग हों अपने से 3 गुना और उनके जी पास जंग करने के लिए साजो सामान भी हो और अपने पास कुछ ना हो, तो वो अल्लाह से दुआएं कर रहे थे और मोमिन भी थे। जी तो लिहाजा अल्लाह ने वो दुआ कबूल फरमाई रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हदीस में आता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और अल्लाह के सामने दुआएं करने लग गए। कहा कि या अल्लाह जो तूने मेरे साथ वादा किया था वो पूरा कर। और बड़ी अजीब दुआ है, बड़ी अजीब दुआ है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त की। और उन्होंने कहा कि या अल्लाह अगर तू इन लोगों की मदद नहीं करेगा और ये फतह याब नहीं होंगे, उसका मफहूम तो तेरी इबादत करने वाला इस जमीन पर कोई नहीं होगा। क्यों जी? जी सर। ये दुआ करने का अंदाज देखें कितना जबरदस्त है। जी जी बड़ा और ये वही कर सकता है जिसका अल्लाह के साथ लिंक हो, कुर्बत हो, जो हबीबुल्लाह हो। बेशक। ऐसे ही है, जी जी सर। सर। जो अल्लाह का प्यारा हो वही अल्लाह से बिल्कुल। बात कर सकता है ना, इस वजह से कि भाई अगर ये मारे गए तो मेरा जी सर। ख्याल दरमियान में कर लेते हैं, वरना तो अल्लाह को पता है कि अल्लाह का नाम लेने वाला। लेकिन रसूल पाक के अल्फाज यही है कि ला, ला तो तू तेरी जमीन के अंदर कोई, ये डिस्ट्रक्शन हो रही है थोड़ी सी, कोई इबादत करने वाला नहीं होगा। जी सर। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे 1000 और दूसरी जगह पे 3000 भी हमने पढ़ा, 5000 भी पढ़ा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन
اور لوگوں نے ان فرشتوں کو باقاعدہ دیکھا کہ وہ آئے اور لڑ رہے تھے اور گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے زرد کپڑے پہنے ہوئے وہ لڑ رہے تھے، اور کفار نے بعد میں بتایا کہ بھئی ہم نے ان کو دیکھا، تو یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جنگ یہ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی تفعیل آپ لوگوں نے جیتی ہے، اور یہ جہاد فرض تھا جو آپ نے فریضہ ادا کر دیا۔ اب یہ جو مال آپ کو ملا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ہے، اور یہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ یہ کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کا۔ اب یہاں سے وہ جو پیچھے بات تھی اپنا جاہلیت کی کہ جنگ لڑی جائے، جو کسی کا ہو وہ اسی کا ہو جائے، اس کو ختم کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد یہ تنظیم سے ہوگا کہ وہ پورے کا پورا مال وہ آئے گا اور ایک جگہ پہ جمع ہوگا، کوئی بندہ ایک سوئی تک بھی اپنے پاس مال غنیمت میں سے نہیں رکھے گا۔ تو لہذا وہ جو اللہ کی طرف سے آیا جو کہ فرض نہیں تھا، خوشی سے اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی، اور مال غنیمت بھی جو آیا وہ فرض نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مال غنیمت دیتا۔ اب میں اپنے پاس سے انفال کا ترجمہ کر رہا ہوں، وہ حق نہیں بنتا تھا کہ اللہ مدد تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کی، اور لوگ جو تھے وہ لڑے بہرحال اپنی پوری ہمت سے، لیکن فتح کس نے دلائی؟ اللہ نے۔ اللہ تو نے، بے مال شک۔ غنیمت آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کا، تو لہٰذا لوگوں کے لیے یہ انفال کی طرح ہو گیا، نفل کی طرح ہو گیا کہ جو فرض نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خوش ہو کے ان کو دے دیا۔ اب آگے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہلی بات تو یہ مانو کہ مال غنیمت غزوہ بدر کے اندر یا آگے جو بھی جہاد آئے گا اس کے اندر جو مال غنیمت ہوگا اس کو تم بغیر ترتیب کے، بغیر حکم کے اپنے پاس نہیں رکھو گے، بلکہ سارا مال ایک جگہ پہ کیا ہوگا؟ جمع ہو۔ اکٹھا ہوگا۔ آگے پھر 5ویں رکوع کے اندر اسی سورہ انفال کے اندر آئے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حصہ جو ہے وہ 5واں حصہ ہے۔ 5واں حصہ کس کو دو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو، اور باقی 4 حصے جو ہے وہ جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اس کے اندر ہوئے مجاہدین ان کے درمیان وہ اکٹھا ہو جائے گا، اور یہ مال اگلے سال یا آگے جہاد کی صورت میں یا بیت المال کے اندر پیسہ چاہیے یہ یتیموں غریبوں کے لیے یا لوگوں کے لیے، وہ اس کے اندر ہوگا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو یہ ان کے پاس ہی مال غنیمت تھا سارا، لیکن اس مال غنیمت کے ہوتے ہوئے بھی آپ حیران ہوں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس اتنے بھی پیسے نہیں رکھے کہ آپ زکوٰۃ دینے والے ہوں۔ کیوں جی؟ جی ہاں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اتنا نصاب نہیں رکھا اپنے پاس کہ آپ صاحب نصاب ہوں یا آپ نے زکوٰۃ دی ہو۔ حیرانی والی بات نہیں ہے؟ جی بالکل۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال اللہ کا، اللہ کے راستے میں، اللہ کے لوگوں پر، اللہ کی ریاست کے اندر یہ خرچ ہو، یہ ہے اصل بات۔ اب میں جو اس کے اندر موضوعات ہیں میں اس کی طرف آ رہا ہوں، سنیں گے اس کو؟ جی سر۔ اچھا، ہم شروع کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے وہی کہاں آئی جی؟ کس غار میں؟ غار ہرا میں میرے ساتھ رہے گا۔ تو غار ہرا میں نبوت کا پہلا سال شروع ہو گیا۔ آپ نے وہ تبلیغ جو شروع کی غار ہرا کے اندر جو آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق،
मुल्क यहाँ से लेकर जो कुरान मजीद शुरू हुआ मक्का के अंदर, तो पहले अपना दारे अरकम के अंदर लोगों की तरबियत किया करते थे, लोगों को तालीम दी, सारा कुछ किया। वो दावत तरीक़ेकार वो अलग मौजू है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। लेकिन आपने फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप इसको दावत को आम कर दो, तो आप सफ़ा की पहाड़ी पर गए। अब उसके बाद आप पर और आपके सहाबा पर जुल्म सितम शुरू हो गए, और इसकी जो पीक है वो हमें पता चलता है कि मक्का वालों ने मुकाता कर दिया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और सहाबियों के साथ, और उन्हें शाब अबी तालिब एक घाटी थी, उसके अंदर 7 नबूवत से लेकर 10 नबूवत तक उनको क्या किया, कैद कर दिया। कहा कि ना लेना ना कुछ देना। बहरहाल वहां से वापस आए तो पता चला कि भाई अब हजरत अबू तालिब जो उनके थे वो भी फौत हो गए, और वालदा पहले फौत हो चुकी थी, हज़रत खदीजा भी फौत हो गई। तो ये जो आम 10 हिजरी का है, इसको कहते हैं आमुल हुज़्न, गम का साल। गम का जी, अब अल्लाह ताला ने उस गम के साल में ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज करवाया। मेराज करवा के जब वो तो एक अब अपना वाकया था कि भाई अल्लाह ताला ले गया, लेके वापस आ गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जो भी काम पहले करते रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इसका ज़हन में रखिएगा कि 11 हिजरी के अंदर जो हज हुआ है, तो उसके अंदर 6 आदमी आए थे मदीना से जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। अगले साल वो जो 6 आदमी थे, यानी कि 11 का 12 कर लें, 11 नबवी 12 नबूवत के अंदर, हिजरी नहीं 12 नबूवत के अंदर जो लोग हज करने के लिए आए मदीना से, वो 12 ही आदमी थे। कितने थे? 12। 12। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ एक मुलाकात की हज के बाद अकबा के मैदान पर, जो जिस शैतान कंकरियां नहीं मारते, अकबा उला अकब जी, तो वो जी। उस जगह पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 लोगों के साथ मुलाकात की, जो कहाँ के थे? मदीना मुनव्वरा मदीना मुनव्वरा के थे। मेरे साथ पार्टिसिपेट करना है। और उन्होंने कहा जी कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हम अपनी कोशिश कर रहे हैं मदीना के अंदर इस्लाम का फैलाने की बात, तो आप हमें कोई ऐसा आदमी दे दें कि जो हमें कुरान मजीद सिखाए और इस्लाम की दावत दे हमारे साथ, और इस्लाम हमें सिखाए। उन 12 आदमियों के साथ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सुहाबी को, तारीख में आता है कि उनकी शक्ल भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती जुलती थी। उनका नाम था हजरत मुसअब बिन उमैर। क्या था जी? हज़रत मुसअब बिन उमैर। मुसअब या मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हो, ये पहले थे जिनको सफीर बना के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में भेजा। अब हैरान होंगे कि हजरत मुसअब बिन उमैर, और उन्होंने माशाल्लाह इतनी दावत का काम किया वहां के 13 हिजरी के अंदर उसी जगह पर जहां 12 आदमियों ने बैत की थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर, तो बैत अक़बा सानिया यानी कि दूसरी बैत की, तो उसके अंदर 70 से ज्यादा सहाबा जो थे वो मौजूद थे। पहले किसी जगह पे 72 आता है, किसी जगह पे 75 आता है, तो इसलिए मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया 70 से ज्यादा सहाबा, जिनके अंदर औरतें भी थी। और उन्होंने बैत की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और वो बैत के अल्फाज भी हदीस के अंदर मौजूद हैं। तो माशाल्लाह आप बताएं कि एक साल के अंदर 12 को 72 बना देना जी, इसका मतलब यह है कि तकरीबन 60 लोगों को मुसलमान करना, क्यों जी, काम है या नहीं? बिल्कुल।
बहुत बड़ा। बहुत बड़ा काम है। यही लोग थे कि जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी कि अब आप हमारे पास मदीना तशरीफ ले आए, और वो 13 जब नबूवत हुई तो आप अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि वे पहले लोगों को भेज दो, तो जो लोग जाते रहे और मदीना के अंदर जाके उनको एक बस्ती मिल गई, वहां जाके आबाद हो गए। आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म आ गया और आप हज़रत अबू बकर को साथ लेके आप चले गए। अब जिस तरीके से गए वो भी अजीब है कि उन्होंने, मक्का वालों ने जितने भी कबाइल थे सब में से हर एक को कहा कि भी एक एक बंदा आपका आ जाए और हम नऊजुबिल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कत्ल कर देते हैं जी, या शहीद कर देते हैं। अब ये अल्लाह ताला ने अपना एक मुइज़ा दिखाया कि वो वहां से निकले, वो वमा रमैता इज़ रमैता इस सूरत के अंदर भी आएगा, और वो वहां भी हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मट्टी मतलब ली और अपना फेंकी इस तरीके से, तो वो लोग आंखें मलते रह गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहरहाल उनके अंदर से निकल के चले गए और कहाँ पहुंचे? गारे सौर। आज वो सारा वाकया गारे सौर और फिर वो रेगिस्तान का इलाका और सुराका बिन मालिक का वाकया, तो चले गए मदीना पहुंच गए। मदीना। हाँ जी। अब जितने भी, ये पहला साल, ये ज़हन में रखिएगा कि पहला साल आप मदीना के अंदर, तो जो मक्का के लोग थे, आपका क्या ख्याल है कि उन लोगों को वो आराम से बैठे होंगे? सवाल नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो आराम से नहीं बैठे, उन्होंने कहा कि वो क्या करते थे। अब बेटा नक्शा लगाओ, जब मैं साथियों को बताना चाहता हूँ। ये जी, ये आपके सामने नक्शा आ गया है जी, बस जी, आगे देख रहे हैं जी सर। जद्दा। आप ऊपर देखिए, जो जद्दा है ना, जद्दा के साथ मक्का है। बेटा आप इसको जरा करके खुला करके तो हमें बता सकते हैं कि मक्का, हाँ ये मक्का आ गया, दिखाई दे रहा है मक्का। जी सर। अब सब लोगों ने देखना है जी, बस बिल्कुल। होता ये था कि मक्का से लोग जाते थे और ऊपर लिखा हुआ है सीरिया, ऊपर इसराइल लिखा हुआ है, जॉर्डन लिखा हुआ है, लेबनान बन गया। उस वक्त वो सीरिया होता था, सीरिया शाम को कहते हैं। शाम। तो ये लोग, हाँ जी, ये लोग मक्का से शाम जाते थे और वहां से वापस आते थे। तो मुझे ये बताइए कि मदीना दरमियान में आ गया ना, जब ये मक्का से मदीना चले गए तो मदीना क्या आ गया दरमियान में? जी प्रोफेसर साहब है हमारे साथ? जी जी बिल्कुल नहीं। जी हैं जी। प्रोफेसर साहब आपके लिए, आपने नक्शा मेरे ख्याल ज़हन में देखा होगा, मतलब जो रेड सी के अंदर जाए तो जी पहले आता है जद्दा, जद्दा के साथ मक्का है। जी तो मक्का के शिमाल की तरफ जिधर सीरिया है वहां मदीना है, यानी कि जी मदीना जो है वो सीरिया और मक्का के दरमियान आ जाता है जी बिल्कुल। बिल्कुल। जी, दरमियान में आता है। तो मक्का से शिमाल की तरफ हिजरत की रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब सुने, अब ये था कि जब हिजरत करके आए तो अबू सुफियान और बाकी लोग, इन लोगों को कहा, अबू सुफियान को, कि भाई आप हमें अपने पैसे दें और हम वहां से क्या करें, तिजारत करके आए और तिजारत करके जो पैसे लाएंगे उससे हम अपना माल खरीदेंगे और ये जो मदीना वाले हैं इनका खात्मा करेंगे, जंग करेंगे। अब इन चीजों की जो भिनक थी वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी पड़ी। और दूसरी चीज, इससे पहले ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर ये दरमियान में मौजूद हैं, तो वो आते जाते तो रहते थे काफिले। जी जी बात नहीं सुन रहे? काफिले आते थे, कहां से कहां तक, मतलब बताइए जरा। सीरिया से
मक्का तक। मक्का। जी, मक्का से सीरिया और फिर वापस आते थे ये। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 हिजरी के अंदर सिर्फ मुहाजिरीन को साथ लेके 3 दफा उन पर हमला नहीं किया, लेकिन यह है कि उनके काफिलों को डराने के लिए कि हम मौजूद हैं और आपको हम तकलीफ पहुंचा सकते हैं दुश्मन के साथ। जब दुश्मन ना समझा जाए उसको तो वो फिर बात नहीं बनती। ये ध्यान में रखिएगा कि जी। उनको ये बताने के लिए कि अगर पर हमला करेंगे तो हम आपकी शाह रग जो तिजारती है इसके ऊपर बैठे हुए हैं, जी। हम आपके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये गुज़वा बदर से पहले जो भी असरिये हुए हैं या गुज़वा हुए हैं, जंगे मतलब थोड़े थोड़े ऐसे मतलब हुए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डराने के लिए चले गए और कहा कि भाई इनको बताओ ये कि हम लोग यहाँ मौजूद हैं और हम आपके तिजारती रास्ते को बंद कर सकते हैं। एक तो ये ज़हन में रखें। अब जब अबू सुफियान वापस आ रहा था सीरिया से, यानी कि ऊपर जहाँ एरो है वहां से वापस आ रहा था, तो उसने ये सुना, उसने एक पैगाम भेजा मक्का के अंदर एलची के जरिए कि मेरे पास बहुत बड़ा काफिला है। और उस वक्त 50,000 अशरफी का जो काफिला होता था बहुत बड़ा काफिला होता था और बड़ी बड़ी तिजारत होती थी। तो वो मुझे खबर मिली है कि मदीना दरमियान में है, मदीना में वो मुझ पर हमला करने वाले हैं। कौन? मुसलमान। मुसलमान, बिल्कुल। अब ये खबर जब मक्का में पहुंची, बेटा मक्का की तरफ एरो लाओ, नीचे। ये जब मक्का पहुंची तो यहाँ अबू सुफियान तो था काफिले के साथ, मक्का के अंदर जो सरदार था वो कौन था? अबू जहल। जी। कौन था? अबू जहल। अबू जहल ने सब लोगों को कहा कि भाई तुम ऐसा करो कि अब इस लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। हम एक तो ये है कि उस काफिले को बचाएंगे और दूसरा ये है कि हम उधर जा ही रहे हैं तो हम जंग करेंगे। तो लिहाजा हर एक आदमी ने अपना क्या नाम है माल भी दिया और अपने घोड़े वोड़े जो थे वो भी, और जिरा भी और तलवारें भी। यानी कि ये 1,000 का अपना काफिला ये वहां से चला, जिनके पास बहुत सारे मतलब वजीरें थी, तलवारें थी, घोड़े 200 के करीब थे, ऊंट बहुत सारे थे, हर एक आदमी के पास ऊंट था। तो ये लोग आ गए, मदीना की तरफ आ गए। रास्ते में उन्हें पता चला, अबू सुफियान ने ये बताया कि भाई आप मेरा काफिला जो है मैं दूसरे रास्ते से बच के वापस आ रहा हूं, तो आप अब ना जाएं। अबू जहल ने रास्ते में था मक्का से मदीना के दरमियान, उसने कहा अब आए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, इन लोगों के साथ जंग करेंगे। समझ आ रही है? जी। जी। अब हदीस सुने। हदीस ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को इकट्ठा किया। अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। उसमें सहाबा किराम थे, मुहाजिरीन भी और अंसार भी थे, और हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु ये सबसे पहले उठे। वशाविर व अम्रहुम शूरा बैनहुम के जो मुसलमान हैं उनका तरीक़ाकार ये होता है कि वो हर काम मशवरे से करते हैं। अब जब जी। हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला से पूछा और अंसार से पूछा, कहा कि भाई आपका क्या मशवरा है, आपका क्या मशवरा है? पहले हजरत अबू बकर बोले, फिर उमर बोले, फिर हजरत मिकदाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसराइल की तरह नहीं होंगे कि हम ये कहें कि तू और तुम्हारा रब जाओ और जाके वो जो जॉर्डन आपको ऊपर नजर आ रहा है और लबनान और बैतुल मुकद्दस ये फिलिस्तीन का इलाका है, कि भाई जी। इसको तुम जाके खुद फतह करो और हम तो यहाँ बैठे हुए हैं और तू और तुम्हारा अल्लाह जाके लड़ो। ये वही इलाका है सहराए सीना जो आपको नजर आ रहा है, और ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है ना अपना खलीज, ये जी देखिए एक सर। तो सीधी चली जाती है ना, एक दाएं हाथ पे इसराइल की तरफ जा रही है, ऊपर ऊपर बैठा ऊपर। हाँ, ये
इसराइल से नीचे बेटा पानी, पानी बहरे आमर, हाँ ये वाली, ये खलीज, इसके आखिर में एक है अकबा, जहां इन्होंने इलात एक बनाई है अभी बंदरगाह। ये सहराए सीना है बेटा, ऊपर लेके जाओ, तुकून जो बनी हुई है सहराए सीना, नहीं सहराए ऊपर 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 बेटा, उधर उधर ऊपर 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 और नीचे, हाँ ये है सहराए सीना जो अभी जा रहा है, ठीक है। ये तुकून जो बनी हुई ये सारा सहराए सीना है। तो यहाँ ही अल्लाह ताला ने कहा कि भाई तुम उस बस्ती में जाओ और जाके उनसे जंग करो तो अल्लाह ताला आपको देगा, लेकिन वो लोग जो थे वो नहीं जाके लड़े। बहरहाल ये तो अलग चीज है। हजरत मिकदाद ने कहा हम बनी इसराइल की तरह नहीं है कि हम आपको छोड़ दें, हम आपके साथ हाथ लिहाज से अपना मिल के जंग करेंगे। अब वो खामोश हो गए। तो हजरत साद थे, साद बिन उबादा है मौला अपने प्रोफेसर साहब, साद बिन उबादा जी जी। अब वो अंसारी थे। तो फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया आपका क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है। तो साहब वो पूछने लगे भी क्या आप हमसे मुखातिब हैं अंसार से। अब जो हजरत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला ने तकरीर की वो बड़ी जबरदस्त तकरीर है। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो जाहिल थे, काफिर थे, हम ईमान लाए आपकी वजह से, हम आपका साथ हर लिहाज से देंगे। आप अगर हमें समंदर के अंदर भी कूदने के लिए कहेंगे, किसी दरिया के अंदर भी कूदने के लिए कहेंगे तो हम वहां भी जाएंगे और आपकी खातिर हम अपनी जिंदगी कुर्बान करेंगे। जी अब अल्लाह की तरफ से वही आई, वो क्या कि दो किस्म के लोग हैं। एक तो वो थे जो सीरिया से अबू सुफियान का काफिला, बेटा सीरिया से इशारा नीचे करें बेटा, ऊपर सीरिया से मक्का की तरफ लेके जाएं, मक्का की तरफ, हाँ यूं करके। ये अबू सुफियान का काफिला था जो ऊपर से नीचे आ रहा था। और एक काफिला था जो मक्का से मदीना, बेटा करो एरो करो, मक्का से मदीना, ये अबू जहल का काफिला था जो जंग करने के लिए आ रहा था। अब अल्लाह ने वादा ये किया था कि इन दो ग्रोहों में से एक ग्रोह आपका होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि भाई आप किस ग्रोह पर हमला करना चाहते हैं। तो इंसानी जो फितरत है वो क्या चाहती है, आसानी या मुश्किल? आसानी। आसानी। उन्होंने कहा जी हम अबू सुफियान के रास्ते पर करेंगे, अपना काफिले पर हम हमला करेंगे। अब अल्लाह ताला ने ये कहा कि वो जो काफिला आ रहा है कुफार का मक्का से मदीना की तरफ अबू जहल की सरकर्दगी में, तुम्हें लड़ना है उससे, ये हम पढ़ेंगे। इसलिए एक हक का हक हो जाए, बातल का बातल हो जाए। अब ये सोच रहे थे कि हम 313 हैं और वो 100 अगर निकल गए उनमें से तो वो 900 के करीब हैं, तो हम तो उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो मदीना के करीब बदर का मैदान था जिस जगह पे ये जंग हुई, और जंग में फतह किसकी हुई? मुसलमानों मुसलमानों की। तो सारे के सारे इलाके जो शिबल जजीरा, इसके अंदर धूमें पड़ गई कि अब मुसलमान जो हैं वो किसी को छोड़ेंगे नहीं, और ये बड़े बहादुर हैं, अपने से 3 गुना बड़ी फौज को उन्होंने शिकस्त दी है। तो एक धाक बैठ गई। तो ये है भाइयों, वो जो अपना माले गनीमत आया था उसको गनाइम नहीं कहा अल्लाह ताला ने, उसको अनफाल कहा है, जो मैंने अभी बता रहा था। अब बेटा जल्दी जल्दी इसको ऑफ करें और हमें बताएं कि सूरह अनफाल जो है वो हमें लाएं, और मैं बता, हाँ जी। अब हम जी पढ़ने लगे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना वक्त है बेटा हमारे पास? 5 मिनट। जी 5 मिनट है। जी हम इन 5 मिनट में एक आयत इंशाअल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि पढ़ेंगे। यसअलूनका अनिल अनफाल, यसअलूनका, वो तुझसे सवाल करते हैं, सवाल करते हैं, वो तुझसे सवाल करते हैं जी। अनिल अनफाल, अनफाल मैंने बताया था ये नफल की जमा है, लेकिन इस जगह पे चूंकि अल्लाह का वो हक था और अल्लाह ताला ने फ्री दिया मुसलमानों को, इसलिए अनफाल माले गनीमत, गनाइम भी आगे आएगा। लेकिन यहाँ अनफाल इस वजह से आया कि लोगों को ये पता चल जाए कि ये माले गनीमत है किसका असल में।
پہلے یہ ذہن میں بٹھانا تھا. تو وہ تجھ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. جی ذرا جلدی پڑھیے. یسألونک عن الانفال. وہ تجھ سے مال مال غنیمت غنیمت کے بارے میں کرتے ہیں. سوال کرتے ہیں. ہاں تو اب اس کا جواب تو دینا ہے. تو قل الانفال للہ والرسول. قل کا مطلب کہہ دیجئے اے نبی صلی اے اللہ نبی علیہ کہہ وسلم دیجئے الانفال مال مال غنیمت غنیمت مال غنیمت للہ اللہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے والرسول اور رسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. پہلی بات تو یہ مانو کہ پہلا جو طریقہ تھا کہ جو کسی کے ہاتھ میں آ گیا وہ اسی کا ہے, اس کو ختم کر دیا. اب آ گیا کہ مال غنیمت جتنا بھی ہوگا ایک جگہ پہ اکٹھا ہوگا اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا. آگے جا کے آئے گا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ رسول لے گئے اور 4 حصے جو ہے وہ لوگوں کے اندر تقسیم کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کرنا کیا ہے. پہلی بات فاتقوا اللہ. اور یہ اللہ بڑی سے زبردست آیت ہے. اللہ سے ڈرو اللہ سے تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ہاں. تو پہلی چیز دل کے اندر اللہ تعالی کا تقوی ڈالا. وَأَصْلِحُوا اور اصلاح کرو. ذات بینکم اپنے اندر. ذات بینکم کا مطلب ہے آپس میں. وَأَصْلِحُوا ذات بینکم اور آپس میں اصلاح کرو. کیا کروں آپس میں اصلاح کرو کہ ہم نے اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی بات ہی ماننی ہے. اور آگے کیا ہے جی وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. بڑا ترجمہ کر لیں گے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ اور اللہ اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ و رسولہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان کنتم مومنین اگر تم ایمان لانے والے ہو. اگر تم ایمان لانے والے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ جناب آج ہم نے پڑھی ایک آیت. جی پروفیسر صاحب ذرا آپ دہرا دیجئے گا. جی یسألونک وہ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عن الانفال مال غنیمت کے بارے میں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے الانفال مال غنیمت للہ اللہ کے لیے ہے, والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فاتقوا اللہ تو ڈرو اللہ سے. واصلحوا ذات بینکم اور اپنے معاملات کو درست رکھو. واطیعوا اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی, ورسولہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. جی ٹھیک ہے. تو وَأَصْلِحُوا اصلاح کر لیں اگر کرنا ہے, اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو. جی تو یہ جناب آج ہمارا پہلا سبق ہوا, اور اس کا جتنا بھی بیک گراؤنڈ ہے وہ یاد رکھنا ہے, اس لیے کہ اسی پہ سارے کے سارے غزوہ بدر کے بارے میں یہ پوری کی پوری صورت جو بتاتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ نازل ہوئی, اور اس کے اندر بتایا گیا کہ بھئی جو طریقہ جنگ کرنے کا وہ کیا ہے, کیسے کرنا ہے, اللہ کیسے مدد کرتا ہے ایمان لانے والوں کی. تو کل انشاءاللہ ابھی ہمارے آگے پاس آیت ٹائم نمبر ہے, 2 ابھی تو 12-13 منٹ ہیں, 10-20 تک کی کلاس چل رہی ہے. انکل ٹائم نہیں آج 9:45 بجے شروع ہوا تھا. اچھا تو وہ آپ نے کل مجھے بتایا نہیں. کل بتایا تھا. جی چلے آج 8:45 بجے شروع ہونی ہے کل سے کلاس, آج سے 8:45 بجے شروع ہوئی. میں نے اسی